हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक डिक्टेशन लिखने वाले हैं। ये डिक्टेशन उत्तराखंड हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट रांची जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनोग्राफर और पीए का, जिसके अंदर 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है, उस एग्ज़ाम के लिए डिक्टेशन हम लोग लिखने वाले हैं। ये एक तरह से लीगल मैटर है, पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि लीगल मैटर ही आएगा। एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का मैटर आ सकता है, पर आज हम लोग लीगल मैटर लिखने वाले हैं। ये मैटर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में आप इसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम जो स्पीड पर लिखने वाले हैं वो 80 से लेकर 90 डब्ल्यूपीएम पर रहेगी, मतलब फिक्स 80 पर हम नहीं लिखेंगे, बीच में आपको 90 लगेगी। कभी हम इसको 85 लिखेंगे और कभी 80 के स्पीड पर लिखेंगे। तो अभी हम इस डिक्टेशन को लिखना शुरू करते हैं। सो गेट रेडी। 3, 2, 1, start. Learned counsel appearing for the petitioners presents a twofold argument. Stop. Firstly, it is contended that since section 326 of the code has no application to summary trial cases, a de novo trial must be conducted. Stop. Secondly, it is argued that the sentence is an integral part of the judgment and judgment remains incomplete until the sentence is passed. Stop. Therefore, the successor magistrate cannot pass the sentence if their predecessor pronounced the judgment. Stop. On the contrary, learned counsel appearing for the first respondent contends that since the summons procedure has been followed, subsection 3 of section 326 has no application. Stop. Moreover, since the judgment was pronounced in open court, signed and dated, the entire judgment could not be vitiated. Stop. Hence, it is argued that it is unnecessary to conduct a de novo trial. Para. The facts outlined above are not in dispute. Stop. The trial process in this case has concluded with the pronouncement of the judgment. Stop. The judgment was delivered in open court, signed and dated. Stop. The petitioners were found guilty and convicted. Stop. However, the sentence was not passed as the accused were not present and the court deemed it necessary to hear them before determining an appropriate sentence commensurate with the gravity of the offense committed. Stop. As the correctness of the conviction remains unchallenged, there is no need to delve into the merits of the case. Stop. It is evident from subsection 1 of section 326 of the code that the successor magistrate can act on the evidence recorded by their predecessor either wholly or partly. Stop. If the successor magistrate deems it necessary, further examination of a witness may be conducted. Para. However, there is no requirement to conduct a retrial or de novo trial. Stop. Learned counsel for the first respondent argues that there is no need for a de novo trial and cites the judgment of the apex court. Stop. Following an amendment to section 350 of the old code under Act 26 of 1955, which deleted the expression
to recommence the inquiry or trial and substituted the proviso, the succeeding magistrate can act upon the evidence recorded by their predecessor, obviating the need for a de novo trial. Stop. The present section 326 of the code is akin to section 350 of the old code as amended under Act 26 of 1955. Stop. Subsequently, section 326 of the code was amended under Act 45 of 1978 to include the expression judge, thereby allowing sessions judge to act upon evidence recorded by their predecessor. Stop. However, these amendments are not relevant to the instant case, as the crux of the matter concerns whether the magistrate can follow this procedure in a summary trial case. Stop. It is evident that this provision enables a magistrate to conduct a trial in summary trial cases by following the summons procedure. Stop. Similarly, section 259 of the code allows a magistrate to convert a summons case into a warrant case. Stop. Therefore, it is clear that the code empowers judicial magistrates of first class to convert a summary case into either a summons case or a warrant case, but not vice versa. Stop. So ये हमने डिक्टेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर 508 वर्ड्स थे और इसकी स्पीड जो है वो 80 से 90 WPM के बीच में रही है। अब इसके अंदर आप डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करिए, अपनी गलतियों को चेक करिए, उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसी PDF के अंदर आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स भी मिल रहे हैं। जितने भी कैपिटल वर्ड्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो सारे इसके अंदर मैंने मेंशन करे हैं, साथ में उनको समझाया है कि ये क्यों कैपिटल हुआ है। साथ में पंक्चुएशन रूल्स भी मैंने समझा रखे हैं कि यहाँ पर कॉमा अगर आया है तो क्यों आया है, उसका रूल और एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने लिख रखे हैं, जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको अगर नहीं पता है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी लगे उस वर्ड के अंदर तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आपको आसानी रहेगी उसको बनाने के अंदर और समझने के अंदर। और लास्ट के अंदर आपको इस मैटर के अंदर जितनी भी जॉइनिंग्स बन रही थी, जितनी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस थी, वो सारी भी मैंने इसमें मेंशन कर रखी है। सो ये पूरी PDF है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन से आपसे डाउनलोड ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैंने इसको वहाँ पर भी शेयर कर रखा है। अब इस मैटर को आप ट्रांसक्राइब कैसे करोगे? सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट मिलेगी, आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आप फ्री डेमो पे क्लिक करोगे और वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करोगे तो आपकी मेल ID के ऊपर पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हो अपने मेल ID और पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फ्री डिक्टेशंस, अलग अलग स्पीड के ऊपर डिक्टेशंस हैं, वीकली मॉक टेस्ट है, साथ में फरवरी के डिक्टेशंस अलग हैं, मार्च के अलग हैं और अप्रैल के अलग हैं। अभी हमारा अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल वाले सेक्शन में आप आ सकते हो। उसके अंदर आप जितने भी डिक्टेशन जो डेली अपलोड होते हैं वो देख सकते हो। ये हमारे इतने सारे डिक्टेशंस हैं जो अप्रैल के अंदर अभी तक अपलोड हो चुके हैं और रेगुलरली डेली बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। अब आपको जो भी डिक्टेशन लिखना हो उसके लिए आपको गेट एग्जाम पे क्लिक करना है और यहाँ से प्ले ऑडियो और स्किप ऑडियो करके आप लिख सकते हो। प्ले अगर आपने डिक्टेशन सुना हुआ है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं सुना हुआ तो प्ले ऑडियो कर सकते हो। अभी मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपकी बैक स्पेस काम करेगी, पर अगर आपने एक बार पूरा मैटर लिख दिया और आप चाहते हो कि आप 100 वर्ड लिखने के बाद में फर्स्ट वर्ड पे वापस से क्लिक करो तो वो क्लिक नहीं होगा। एग्जाम के अंदर भी क्लिक नहीं होता है, कुछ कुछ एग्जाम में अलाउड रहता है, बाकी मोस्टली एग्जाम में क्लिक नहीं होता है, तो उसके अंदर भी आपको क्लिक नहीं हो सकता है। तो आपको अगर पीछे जाना होगा तो बैक स्पेस दबा के ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीछे जा सकते हो। पूरा डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब कर लोगे। आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अगर आपने टाइम से पहले ख़त्म कर दिया तो सबमिट कर सकते हो, नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अभी मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये पूरा दिख रहा है।
अब इसके अंदर आपने जो भी टाइप किया होगा वो आपकी सारी मिस्टेक्स इसमें शो हो जाएगी। अब बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये तो पेड वाला सेक्शन है। आपको अभी फ्री डेमो अगर आपको लेना है तो फ्री वाले सेक्शंस में जाना है। फ्री डिक्टेशंस आपको मिल जाएंगे, 5 डिक्टेशंस आपको अलग अलग अपलोड हैं, जिसके अंदर आपको अपने जनरल मैटर भी हैं, एडिटोरियल भी है और लीगल मैटर भी है। मतलब हर टाइप का मैटर इस पर आपको मिल जाएगा। मेल और फीमेल वॉइस भी आपको देखने को मिल रही है, स्पीड भी लिखी हुई है। ये आप एक बार विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारा कुछ वैसे ही चलता है। इसको एक बार आप फ्री डेमो लेकर के देखिए, फ्री टाइप करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद में आप अगर इसको एनरोल करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पूरा प्रोसेस वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और वहाँ पर मैं आपको अब से जो है रेगुलरली एक अलग अलग टाइप के डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा। अलग अलग टाइप का मतलब है अलग अलग मैटर के ऊपर, मतलब हर रोज़ हम एक अलग डिफरेंट मैटर के ऊपर डिक्टेशन लिखेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। अलग अलग मैटर, जैसे कभी क्रिकेट के ऊपर लिख लिया, कभी एलिफेंट के ऊपर लिख लिया, ये मैटर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के मैटर्स काउंट होते हैं। हम डेली बेसिस पर इन पर डिक्टेशन लिखेंगे, एक एक या 2-2 मिनट का। टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा वो डिक्टेशन। साथ में मैं इसके अंदर 25 से 30 वर्ड्स आपको और दूंगा। वो वर्ड्स भी आप अपने फ्रेज की जो नोटबुक आपने बना रखी होगी उसमें नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपकी जो फ्रेजेस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहे और आप ज़्यादा वर्ड सीख सको। सो ये पूरी क्लास का फॉर्मेट है। आपको ये डिक्टेशन लिखना चाहिए। उत्तराखंड और झारखंड हाईकोर्ट के अंदर 80 WPM का एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए। 80 WPM का ऊपर होगा तो आप 90 या 100 की अच्छे से प्रिपरेशन करके चलोगे तो आप 80 आराम से निकाल सकते हो। तो कोई भी डाउट या क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।